Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you are doing well at home and the lockdown is going well for you guys. As after so long we are being connected once again through this channel and I'm recording this audio with the help of video uh, with this new software that is Xrecorder. Acha, the topic which we are going to discuss today, I think we have also discussed this topic on the campus in our classroom as well. I just want to revise this topic and so that we could push our course further, and I'm just trying to initiate our course through these online classes with the help of this one. So this is lesson 19 in the book Better Writing Right Now, and the topic which we are going to discuss is writing reports. Here I discuss all these things in the classroom as well. Some students were of the view that I should revise this topic. That's why I'm going to revise this topic and also going to start a journey of the online stuff or the online classes. First of all, if I ask somebody, if I ask myself, because I'm alone at home, I'm making this video alone, so I cannot ask you guys. So what is report? Actually, here it is written that reports at works are used to give the progress of a project, to talk about an employee's performance over the last 1 year, blah blah blah. Does mean report is such a thing in which we give the progress of a project. We talk about the performance of an employee. We talk about travels. We talk about expense in the we bear in the travels. We talk about accidents. We talk about anything else. We talk about the minutes of the meeting, blah blah blah. Does mean report tells a different story of different situation. So here we get different kinds of report. One is meeting minute, and meeting minute tells us, meeting minute is such a report which tells or summarize what was discussed at a meeting. यानी आप एक मीटिंग आपकी होती है, कॉलेज में होती है, बाहर होती है कहीं, तो यू टेल द होल स्टोरी, यू टेल द होल डिटेल्स ऑफ द मीटिंग. आप मीटिंग की जो डिटेल बताते हैं वो मीटिंग मिनट्स में फॉल करती है. एंड what comes under the status report? Status report एक ऐसी रिपोर्ट है we tell the current progress made on a certain project. यानी कोई प्रोजेक्ट है आपके यहाँ चल रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर हम इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ BS एज अ प्रोजेक्ट which is being run in our college, BS एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है, तो इसकी अगर आप करंट प्रोग्रेस बताएंगे तो एक रिपोर्ट लिखेंगे पूरी. यानी BS कितने सेमेस्टर चल रहे हैं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं एनरोल्ड, अच्छा कितनी बिल्डिंग कितनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी डिटेल्स. यू पुट ऑल द डिटेल्स इन दिस स्टेटस रिपोर्ट वेयर इन विच यू टेल द प्रोग्रेस made on a certain project. So next we get the travel report, and travel report describe the different aspects of a business trip. Does mean travel report ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आप बिज़नेस के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं. कोई भी कोई एक जो ट्रैवल होती है, किसी भी बिज़नेस ट्रिप के लिए आप जाते हैं, तो उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, कब गए, कहाँ गए, कितने लोग गए, क्या क्या कौन कौन सी जगह से ट्रैवल की, ये सारी रिपोर्ट में आप इनक्लोज करते हैं. सो देन नेक्स्ट इज़ एक्सपेंस रिपोर्ट. हेयर यू लिस्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ बिज़नेस ट्रिप. डज मीन आपने कोई बिज़नेस ट्रिप पे जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, बर्दाश्त किए हैं, बेयर किए हैं, वो आप सारी लिस्ट बताते हैं. देन वी हैव एक्सीडेंट रिपोर्ट्स. एक्सीडेंट रिपोर्ट टेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट्स डिस्क्राइब एन इंसिडेंट. मतलब कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी सारी डिटेल हमें बताई जाती है इसमें. देन वी हैव परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसी रिपोर्ट है इन विच यू टेल द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी आपका अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपने कोई एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप बताते हैं कि कुछ अर्सा पिछले जितने भी अर्सा इसमें एम्प्लॉय का आपके पास हुआ है तो कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है. और इसके बाद है
Competitive analysis compare your company's product with similar products put out by competitors. यानी दो अगर कंपनीज़ हैं, उनकी दो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन मेरा ओप्पो है और एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग है, तो दो प्रोडक्ट्स एक ओप्पो की और एक सैमसंग की प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा एक रिपोर्ट में, जिसे कंपेटिटिव एनालिसिस भी कहते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट भी होते हैं, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पेजेस और इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। रिपोर्ट अगर एक होती है, उसके हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट आर देयर। Here we have four parts of a report. Reports generally have four main parts. First one is introduction. Introduction के बारे में introduces the topic and purpose of the report and may summarize the material in the report. You might find following kinds of documents as part of a report's introduction. अच्छा, कहते हैं कि रिपोर्ट जो है ना, इंट्रोडक्शन जो है, एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, रिपोर्ट का पर्पस बताता है, और समटाइम्स कभी कभी ये रिपोर्ट की समरी शुरू में ही बता देता है। ठीक हो गया। और यूजुअली ये बड़ा शॉर्टेस्ट सा पार्ट होता है रिपोर्ट का, लेकिन समटाइम्स इसकी अगर समरी आप इंक्लूड करेंगे रिपोर्ट की स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो ज़ाहिर एक थोड़ा सा लेंथी पार्ट भी बन सकता है। तो ये कहता है कि यू माइट फाइंड द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पार्ट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके पास ये चीज़ें भी आ सकती हैं, यानी एक कवर लेटर और मेमो एक्सप्लेनिंग, या मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था कि कवर लेटर क्या होता है। आप जो सीवी के साथ कवर लेटर लिखते हैं, यानी सी को कवर करने के लिए। मेमो क्या होती है, एक शॉर्ट रिपोर्ट होती है और विद इन द इंस्टीट्यूशन होती है, इंस्टीट्यूशन के अंदर ही लिखी जाती है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक। अच्छा, कहता है कि ये इंट्रोडक्शन में ये चीज़ भी आ सकती है, कवर लेटर भी आ सकती है, मेमो भी आ सकता है। एक्सप्लेनिंग टू whom द रिपोर्ट इज़ डायरेक्टेड, व्हाई द रिपोर्ट वाज रिटन, हाउ द डेटा वर गैदर्ड, द assumptions और limitations ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट एंड सो ऑन। यानी कवर लेटर, रिपोर्ट, मेमो, और ये बताया जाता है कि रिपोर्ट किसको लिखी जा रही है, क्यों लिखी जा रही है, डेटा कैसे गैदर किया गया, असम्पशंस या लिमिटेशंस रिपोर्ट की क्या है, यानी कितनी क्या लिमिट है रिपोर्ट की, ये आप समटाइम्स इंट्रोडक्शन में ही बता देते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी शॉर्ट पार्ट, इसमें जिसमें आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं रिपोर्ट को, नाम लिखते हैं और फिर टू फ्राम लिख देते हैं, डेट वगैरह लिखते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा लेंथी हो तो उसमें ये चीज़ भी आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, कवर लेटर या मेमो या फिर उसकी रीज़न की रिपोर्ट क्यों लिखी जा रही है। फिर सेकंड थिंग इज़ का टेबल ऑफ कंटेंट्स लिस्टिंग द मेन पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन में आप टेबल ऑफ कंटेंट्स भी समटाइम्स रख देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में यानी आप फिर बताते हैं कि कौन हेडिंग देते हैं, फिर आगे पेज नंबर भी बताते हैं और लिस्ट करते हैं हेडिंग्स को टेबल ऑफ कंटेंट्स में। जितनी भी आगे रिपोर्ट में हेडिंग्स आप दे रहे हैं तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में पहले ही बता देते हैं, और फिर आगे पेज नंबर भी लिख देते हैं, ताकि जो रीडर हो और द रीडर कैन ईजीली चेक द headings of the report, headings being used in the report, and also check the page numbers or the exact location of the headings or the materials which fall under the headings. उसके बाद है summary as abstract of the report telling the main idea and conclusion of the reports. Many readers will only read this part of the report. कहता है कि बस समरी भी समटाइम्स आप इंट्रोडक्शन में बता देते हैं, फिर आप यानी समरी में पूरी चीज़ बता देते हैं कि रिपोर्ट में आगे क्या डिस्कस किया गया है। Then the second part is body. Body gives your main idea and supporting details. बॉडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मेन आइडिया, यानी काफ़ी लेंथी पार्ट है, इसमें मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल जितनी भी होती है वो आप देते हैं। आगे in the next portion we will discuss the reports, examples of the reports, samples of the reports. In those reports you will get to know what the body actually means and what the introduction actually means, and how do we write introduction or body or other parts of the report. अच्छा, third part of the report is recommendation. Recommendation tells what action should be taken based on the information you have presented. Some short reports and form reports don't have explicit information. कहता है कि ये आप रिकमेंडेशन में बताते हैं कि कौन से एक्शन आपको लेने चाहिए बाद में, यानी आप बताते हैं एट दी एंड रिपोर्ट लिखते हुए कि हाँ जी ये काम, अगर आप किसी
एम्प्लाई की परफॉर्मेंस पे लिख रहे हैं तो आप फिर बताएंगे हाँ जी हमने एम्प्लाई की पहले एनालिसिस करेंगे उसकी परफॉर्मेंस का. देन एट द एंड इन द थर्ड पार्ट यू विल टेल द ऑडियंस और द रीडर्स दैट whether the employee should be whether the contract of the employee should be extended or not, whether the employee should be given a permanent place in the company or not, या उसके निकाला जाए, उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो उसे और ज़्यादा मौका दिया जाए, उसे और परमानेंट प्लेस दी जाए, या उसे कहीं किसी जगह पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आप रिकमेंड करते हैं. इस तरह की चीज़ें आप रिकमेंडेशन में. इसी तरह बाकी रिपोर्ट्स में भी ये पार्ट आ सकता है और कभी कभी नहीं भी आ सकता. सप्लीमेंट्री मटेरियल में ऐसा है कि आप यानी रिपोर्ट को कैसे बैकअप करते हैं. यानी इट बैकअप्स इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडेड विद डेटा, नॉट एट ऑल. Not all reports include supplementary material. You might find these kinds of documents attached to the end at the end of a report. कहते हैं कि हर रिपोर्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल नहीं होता, बट यूजुअली यू आल्सो फाइंड दिस फोर्थ पार्ट इन रिपोर्ट एज वेल. यानी अगर सप्लीमेंट्री मटेरियल आपने देना होता है तो ये चीज़ें ज़्यादातर इसमें आती हैं. अपेंडिसेस इंक्लूडिंग tables, graph, raw materials, sample forms, financial statements and other materials that you do not expect your reader to read but provide in case your reader wants to look up something specific. यानी आपके पास जो टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, रॉ डेटा है, सैम्पल फॉर्म, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो भी हैं आप फिर आखिर में दे देते हैं एज अ प्रूफ के तौर पे. सेकंड थिंग इज़ एग्जिबिट्स इंक्लूडिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, फिगर्स एंड सो ऑन. यानी ये चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह ये सारी वहाँ पर एट दी एंड फोर्थ पार्ट सप्लीमेंट्री मटेरियल में पुट की जाती हैं. लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, यानी कोई टर्म्स ऐसी हैं जो आपने यूज़ किए हैं टेक्निकल सी, उनकी इलस्ट्रेट करते हैं, उसकी लिस्ट लिख देते हैं. ग्लासरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स ऑफ जार्गन और जार्गन यूज इन द रिपोर्ट. ऐसी टेक्निकल टर्म जिनका मीनिंग नहीं पता हो, जो रीडर को, जो रीडर्स के लिए न्यू हो, जो आप ही की फील्ड से रिलेटेड हो, उनकी थोड़ी डिटेल देते हैं, उनको डिफ़ाइन करते हैं. या ऐसी जार्गन, ऐसी लैंग्वेज, वेरिएंट ऑफ लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं जो रीडर्स के लिए न्यू हो, उसे भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं. देन द लास्ट थिंग इज रिसिप्ट्स, बजट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिगार्डिंग और फाइनेंशियल रिव्यू. यानी रिसिप्ट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आप इसमें भी पुट कर देते हैं फोर्थ पार्ट में. ये था जी पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट. देन वी हैव स्टेटस रिपोर्ट, सैम्पल्स ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट हेयर, and we also have an example of employee performance appraisal. And then in the next here we have the sample of these reports. We will discuss this in the next video or the lecture. Then we also have the meeting minutes report, यानी मीटिंग की जो डिटेल्स कैसे आप रिपोर्ट करते हैं. So this is the end of this video. I hope you get something out of this. Thank you very much for listening, and I will again record a lecture on these things: status report, employee report, employee performance appraisal, and meeting minutes, etc. Thank you very much.